that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। जी हां दोस्तों, सदन में राहुल की दहाड़ से दिल्ली से लेकर अमेरिका हिला। मोदी को तो राहुल ने भिड़ने का रास्ता दे दिया, ट्रंप को राहुल ने भारतीयों की ताकत भी बता दी। तो वाकई में दोस्तों, दिल्ली यानी केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना होगा तो हैरान जरूर हुए होंगे और सोचा होगा, काश कि मैं ऐसा जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे पाता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुना होगा तो हिल गए होंगे, बौखला गए होंगे, क्योंकि जिस बात को लेकर भारत का साथ देने से उन्होंने इग्नोर किया, वही उनके लिए अमेरिका पर कितना भारी पड़ सकता है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बता दिया है। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने लगी। लेकिन फिर हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखा दे दिया। उन्होंने बांग्लादेश से गुपचुप तरीके से ट्रेड डील किया। दोस्तों, इस समझौते ने भारतीय कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग की चिंता बढ़ा दी। समझौते की तहत एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है। उसके तहत अमेरिका की ओर से बांग्लादेश से आयात होने वाले कपड़े पर 0 टैरिफ रखा जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में दोस्तों बांग्लादेश भारत का कंपटीटर है। अब सोचिए, अगर 0 टैरिफ वस्त्रों के आयात पर अमेरिका लगाएगा तो फिर भारतीय कपड़ा उद्योग कैसे मुकाबला करेगा? What have you done on tariffs? At the beginning, % was the average. 3% was the average. It is now gone up to 18%. A 6% increase. 6x increase. Sorry, thank you. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports, and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. Now, I understand that the people across the aisle here want to protect our country. I understand the people across the aisle here value our data. I believe they do. I also believe that the Prime Minister understands that India's biggest asset is its people, and as a result, its data. I know that. I do not believe for 1 second that the Prime Minister does not understand this. अमेरिका से ट्रेड डील करके भारत को क्या मिला? किसानों के साथ किस तरह से धोखा इस सरकार ने किया, उस पर राहुल गांधी ने जो बात रखी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो मानो सोच में ही पड़ गई।
For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariffs will go down, our tariffs will go down and yours will come up? It means finance trade is weaponized. So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Yes, are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? भारत के इतिहास में पहली बार हमारे किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, यह राहुल गांधी का दावा है। राहुल ने कहा कि आपने हजारों एकड़ में फैले मैकेनाइज्ड अमेरिकन खेतों के लिए दरवाजा खोल दिया है, जिससे हमारे छोटे किसान बुरी तरह से कुचले जा रहे हैं। यह शर्मनाक है और आपसे पहले या बाद में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं करेगा। आप खुद कहते हैं कि एक सुपर पावर का जमाना खत्म हो गया है और जियोपॉलिटिकल टकराव बढ़ रहा है। आप एनर्जी और फाइनेंशियल वेपनाइजेशन की बात करते हैं और फिर भी आपने अमेरिकियों को, हमारे फाइनेंस को, हमारी एनर्जी को हमारे खिलाफ वेपनाइज करने दिया। आप इस हाउस में आकर इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? आप क्या दे रहे हैं? इसके बाद अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राहुल गांधी ने सदन से ही चेतावनी दे डाली। If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं, अगर इंडिया अलायंस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत कर रहा होता, मैं आपको बताता हूं कि हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट ट्रंप से कहते कि इस इक्वेशन में सबसे जरूरी चीज इंडियन डेटा है। आप अपना डॉलर बचाना चाहते हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके डॉलर को बचाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन प्लीज याद रखें कि अगर आप अपना डॉलर बचाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी एसेट जो आपके डॉलर को बचा सकती है वो इंडियन लोगों के पास है। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कह पाए वो बात तो राहुल गांधी ने सदन के माध्यम से ट्रंप को कह दी। हम हैं हिंदुस्तानी,
हमसे पंगा लेकर आपके डॉलर की सेहत खराब हो जाएगी। और राहुल के इस भाषण के बाद दिल्ली से लेकर अमेरिका तक हड़कंप है। राहुल ने दिल्ली से अमेरिका तक हिला के रख दिया है। प्रधानमंत्री तो वाकई सोच रहे होंगे, काश मैं ऐसे चेतावनी ट्रंप को दे पाता, इतनी हिम्मत मैं भी जुटा पाता। तो दोस्तों, जिस तरह से चाइना और रशिया अमेरिका के और ट्रंप के आंख में आंख डालकर अपनी करेंसी की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी संप्रभुता के लिए लगातार आवाज उठा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे महामानव, हमारे नॉन बायोलॉजिकल राहुल गांधी सदन के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते यही तो संदेश दे रहे हैं कि क्या ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश समझ लिया है? आंख में आंख डालकर आप क्यों नहीं मुकाबला करते? आप क्यों नहीं अपनी संप्रभुता की बात करते हैं? या ऐसे ही झुके रहिएगा? क्या मजबूरी है साहब? साथ ही दोस्तों, राहुल यह भी कह रहे हैं कि चाइना और रशिया जिस तरह से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति को आंख दिखा रहे हैं, आप क्यों नहीं, आप क्यों कतरा रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? दोस्तों, संसद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक संदेश राहुल गांधी देते हुए नजर आए हैं। आपकी राय आप जरूर बताइएगा। शुक्रिया। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला, जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं।